Many of you have recently heard of my father passing away. Thank you so much for your love. Thank you so much for your prayer and your support. My father was an amazing man. He was a loving husband to my mom for over 55 years, a great dad to me and my brother and my sister, and a wonderful shepherd to his first and only church for almost 60 years. He traveled all over the world, especially in India, sharing the gospel of Jesus Christ. He had an amazing testimony of how God brought him from Islam to Christianity, and so many lives were touched and so many people gave their hearts to Christ because of his testimony. He was a denominational leader. He was a Christian educator, a college president, so many things Dad did. But at the heart, he was a preacher of the Word. He was a wonderful expositor of those scriptures, and he was a man of prayer. He prayed and things happened. There's so many times people would come to him and ask him to pray for them, and he would pray from the scriptures, and he would pray with such passion and such faith. Miracles happened. Many of you expressed sadness that you didn't get a chance to hear my dad preach. Well, last year with the shutdown, Dad did several Facebook Lives. And one of the last Facebook Lives that he did before they went back into the church is on the dynamics of prayer. Now remember, he is 83 years of age. He still has the same passion, the excitement about the Word of God and about the importance of prayer and faith. I listened to that message and it touched my life once again. And so I decided to translate it for you. I hope this message will speak to your hearts and challenge you to get into the Word of God and challenge you to reach out to God in prayer. इसलिए आज संडे है और इसलिए आज के आराधना के विचार को देखते हुए एक बाइबल का वचन के आधारित एक संदेश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 13। लूका का समाचार 11वां अध्याय 5 से 13। And he said unto them, which of you have a friend, and go unto him at midnight, and they say unto him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, trouble me not, the door is shut. My children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And as I say unto you, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For every one that asketh receiveth, he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread, Father, will he give him a stone? Or ask a fish, will he give him a serpent? Or if you ask egg, will he give him a scorpion? If then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit unto them that seek Him. आज मैं आपको बहुत ही आनंद के साथ इस गंभीर वचन पर मैं संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब हम टेलीविज़न लगाते हैं क्या पिक्चर दिखता है?
एकदम दिखाई देता है, अस्पताल का पिक्चर दिखाई देता है। स्टाफ और डॉक्टर्स एक अलग प्रकार के कपड़े पहनकर चेहरे को ढाके हुए आपके सामने आते हैं। आपको दिखाई देता है ये कोई परेशान है, ये नहीं चाहते हैं कोई बीमारी उनके ऊपर आए, इसलिए मुंह भी ढाका है, चेहरे भी ढाके हैं और पैर भी ढाके हुए हैं। ऐसा माहौल है। आजकल का जमाना एक भयंकर महामारी का जमाना है। इसको लोग कहते हैं कोविड, यानी कोरोना वायरस। एक ऐसी भयंकर आपातकालीन लहर है जो लोगों को जब हो जाती है वो गवर्नमेंट कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, अस्पतालों में ले जाके उनको भर्ती किया जाता है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट से कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं। आज तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे कठिन परिस्थिति में आप और मैं खड़े हुए हैं। दुकानें बंद हैं, दफ्तरें बंद है, स्कूल और कॉलेज भी बंद है, लोगों को नौकरियां नहीं है, रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ऐसा कठिन माहौल शायद दुनिया में कभी नहीं आया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, इन सब सवालों का, इन सब परेशानियों का एक बहुत बड़ा जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। वो जवाब ये है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब प्रेयर। प्रेयर मीन्स टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर से बात करना। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? आपको आश्चर्य लगता होगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। पूछा गया तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ से हूँ। अनचेंजिंग गॉड है, ना बदलने वाला परमेश्वर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ना बदलने वाला परमेश्वर, जो आपके प्रति जो उसका प्रेम है वो नहीं बदलता है, तो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपकी सहायता करने वाला ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपको मदद करने वाला ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपको संभालने वाला ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज मैं इन सब चीज़ों को बोलते हुए आपके सामने मैं कहूँगा, आज का विषय क्या है? आज का विषय डायनामिक्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सामर्थ्य, प्रार्थना का पावर। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में लगातार प्रार्थना। सवाल आता, प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का बेटा है, इस दुनिया में आया है, उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? वो मतलब उसका और परमेश्वर का संपर्क लगातार है। He has a continuous relationship with God, the creator of heaven and earth. जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर से उसका लगातार संपर्क है, और उस संपर्क के वजह से ऐसी जबरदस्त पावर है उसके बाद। उस पावर के जरिए वो बड़े बड़े काम करता है। आपके घर में कितना भी वायर हो इलेक्ट्रिक का, यदि जब तक वो वायर बिजली से जुड़ा ना जाए, वो वायर के अंदर बिजली ना आए,
तो वहां बल्ब भी लगाएंगे तो चमकेगा नहीं। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का रिलेशन पावर हाउस से, पावर हाउस यानी परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को संभालने वाला, दुनिया को चलाने वाला, वो परमेश्वर से उसका संपर्क है। लोगों ने उससे सवाल पूछा, तू क्या अधिकार से ये कर रहा है? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने जो अधिकार दिया। यीशु मसीह के पास एक पावर है, अधिकार है। वो डेड वायर नहीं है, वो लिविंग पावरफुल वायर है, जिसके अंदर हजारों वोल्ट बिजली चलती है। तो जो जमाना ऐसा था, जो लोग नास्तिक थे, आई डोंट केयर फॉर गॉड, मैं परमेश्वर को नहीं मानता हूँ, ऐसा बोलने वाले लोग भी, आज एक ऐसा माहौल आ गया, वो भी घबरा गए। चारों तरफ लोग अपने मुंह को ढाके हुए, नाक को ढाके हुए फटफटियों पे गाड़ियों में जा रहे। एक भयंकर रोग उनके अंदर ना प्रवेश करे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी महत्व की बात है, ये कठिन परिस्थिति में हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे प्रोटेक्शन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा जो इंजेक्शन तैयार हुआ है, जो आपको दिया जाता है, मतलब जैसे टाइफाइड, टीबी, कॉलरा, इसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन आज क्या करोगे आप? ऐसी माहौल में आप क्या करो? इंजेक्शन लेके घूमते रहे। बहुत से लोगों ने कहा मे बी 80%, मे बी 60%। तो आज दुनिया के परेशानी में उनके पास रखने के लिए अपने पास कुछ नहीं। What do you have to place before the sick world? बीमार से भरी सी दुनिया को रखने के लिए अपने पास क्या है? यीशु मसीह का एक सिंपल उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो यीशु मसीह का सिंपल उदाहरण ये है, एक दोस्त रात के समय उसके पास आया और खुद के पास घर में देखा तो कुछ भी नहीं है, तो पड़ोस के पास गया। पड़ोसी से बोला, मेरे घर में एक दोस्त आया है रात को, उसको रखने के लिए मेरे पास खाना नहीं, तू मुझे 3 रोटी दे। और पड़ोसी ने कहा, मैं अभी दरवाज़ा खोल नहीं सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हुए हैं, मैं अब जगा नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यदि वो दोस्त है, उसकी परिस्थिति देखकर, उसकी मजबूरी देखकर 3 रोटी मांगना बड़ी शर्म की बात है, ये देखकर अवश्य वो अपने दोस्त के लिए 3 रोटी जरूर देगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही बुरी माहौल है, न सिर्फ ये बीमारी का, सबसे बड़ा माहौल ये है आंधी तूफान पानी। आपने देखा होगा टेलीविजन में, बहुत ज़्यादा हालत है, इतना पानी असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में है कि घर के घर बह गए, शहर के शहर बह गए, गांव के गांव बह गए। अब बताइए
आपका घर बह जाए, आपकी खेती, आपकी नौकरी बह जाए, आप क्या कर सकते? लाखों की संख्या से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उनके सामने रखने के लिए आज हमारे पास क्या है? हमारे पास उनके साथ रखने के लिए कुछ नहीं। सबसे पहली बात है, यदि परमेश्वर आपको मदद करता है, बहुत बड़ी चीज। एक आदमी ने फेसबुक में डाला था, मैं सवेरे उठा हूं, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग सवेरे उठते हैं, सवेरा देखना नहीं मिलता, सवेरे होते ही आंख खोलते हैं, घुटने भर, कमर भर, गर्दन भर पानी है। लेकिन आज आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज ये प्रार्थना का महत्व है। परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो आपको संभाला है, सवेरा देखने दिया है, आपको सवेरा देखने दिया है, नया दिन आपको दिया है। लाखों के लोगों के लिए नया दिन नहीं मिला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में प्रार्थना का पावर जरूर देखा, प्रार्थना का पावर मैंने देखा। आज से कई साल पहले मैंने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में गया था। सियोल में ओलंपिक्स का खेल हुआ था और वही सियोल ओलंपिक्स खेल जो हुआ, वहाँ के होटल में हमें रुकने का मौका मिला था। सियोल में बहुत सी बातें वो मैं नहीं बता रहा। सियोल कोरिया में एक सबसे बड़ी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। उसके अंदर 50 लाख मेंबर, यानी अपना भुसावल में 5 लाख या 10 लाख लोग हो गए, 5 गुना भुसावल एक चर्च के मेंबरशिप है। इतने मेंबर कैसे रहते हैं? हमने वो चर्च देखने गए। वो चर्च के पास जब लोग आते हैं, चर्च के मेंबर्स आते हैं, उनके गाड़ियां पार्क की जाती, करीबन 1 किलोमीटर दूर तक पार्क हो जाता है, बहुत गाड़ियां। तो चर्च में बसेस हैं, वो बस आपको जहां आपने गाड़ी लगाई वहां से आपको चर्च तक लाते हैं। इतना बड़ा चर्च। चर्च की बिल्डिंग कैसी है? चर्च की बिल्डिंग फुटबॉल स्टेडियम जैसी है। जैसे आप जानते फुटबॉल ग्राउंड में, स्टेडियम में लोग लाइन से बैठते हैं अलग अलग लेयर पे, वैसा फुटबॉल स्टेडियम जैसा है, बीच में पुलपिट है। ये जो चर्च का पास्टर का नाम है पॉल यंगच्चो। पॉल यंगच्चो नाम का ये पास्टर, उससे किसी ने पूछा, भाई इतने मेंबर आपके चर्च के कैसे हो गए? उसने कहा बिल्कुल सीधी बात है, ये जो है लगातार प्रेयर, इंटरसेसरी प्रेयर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। ये प्रार्थना में बहुत पावर है। मैंने पूरे कोरिया के लिए, एक एक कोरिया के परिवार के लिए, एक एक परिवार कोरिया के मेंबर के लिए मैंने प्रार्थना किया। आज उनका जीवन बदल गया, आज वो मेरे इस चर्च के मेंबर बने हुए हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आज अपनी गरज परमेश्वर के सामने रखो। यहाँ यह आदमी ने आया, बाइबल क्या कहती है? मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। Ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be opened. Seek and you shall find. ये 3 शब्द हैं परमेश्वर से मांगना है। बहुत से लोग नहीं मांगते, कुछ भी बोलते हैं। लोग बोलते प्रेयर करो, हाँ खड़े हो जाते प्रेयर करने के लिए, क्या बोलते?
सारे भुसावल को आशीष दे। वो प्रेयर का कोई मतलब नहीं। वो आदमी ने आया अपने पड़ोसी से, हाँ मेरे को रोटी मांगता है, नहीं बोला मेरे को 3 रोटी मांगता है। यू परमेश्वर से जब आप मांगते हैं कभी ऐसा मत करो, बी स्पेसिफिक। क्या आपकी जरूरत है? ये बीमारी से आपको छुटकारा मांगता क्या? ये तकलीफ से आपको छुटकारा मांगता क्या? हो सकता है कि आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपकी नौकरी में आपकी तनख्वाह पूरा नहीं पड़ रहा है, घर का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, घर की और जरूरतें अधूरी हैं, आप जो खाना चाहते हो खा नहीं पाते, आप जो पहनना चाहते हो आप पहन नहीं पाते। आज ईश्वर को बोलो, हे प्रभु मुझे कपड़ा चाहिए, हे प्रभु मुझे घर चाहिए। मैं आज आपका पर्सनल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कई साल पहले मैं भुसावल में एक छोटे से 20 रुपया किराए के मकान में रहता था। मकान के सामने रोड था और वहाँ का इलाका बिल्कुल कोई बकरी पाल रहा, कोई गाय पाल रहा, अच्छा नहीं था। आर्मी का एक कैप्टन, उसके माँ का डेथ हुआ था, मैंने उसको फ्यूनरल दिया था। वो कैप्टन मेरे घर पे आया, वो आर्मी का कैप्टन था, बड़ी भारी गाड़ी में आया था। जब वो मेरे घर के पास आया मुझे बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। ना मेरे घर में साफ सफाई थी, ना कोई सोफा सेट था, कुछ भी था, घर अच्छा नहीं था, बहुत लज्जित हो गया। उसने मुझे कुछ पैसा दिया और चला गया। मैं वहाँ परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तेरा दास हूँ, कितने बुरे घर में मैं रहता हूँ, मुझे अपने घर से शर्म आ रही। परमेश्वर ने मेरी दुआ सुनी, परमेश्वर ने मेरी दुआ सुनी। आज आप देखिए उसने मुझे बदल दिया, मुझे एक बहुत अच्छा घर दिया उसने मुझे घर दिया, रहने की सुविधाएं दी, हर तरह का आराम दिया और सुंदर कंपाउंड दिया। कोई भी आता है तो मुझे शर्म नहीं होता उसको, मैं उसको बोलता आइए साहब ये हमारा घर है, आप बैठिए। मेरा कहने का मतलब आस्क, क्या आपकी जरूरत है? घर की जरूरत है, पैसे की जरूरत, शांति की जरूरत है आपको, क्या है आपकी जरूरत है? ये आप मांगो। तो यहाँ इसने मांगा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। चेलों ने लगातार देखा, अरे ये तो प्रार्थना ही करते रहता है, लगातार प्रार्थना ही करते रहता है। आपको मालूम है परमेश्वर से आप लगातार प्रार्थना करते हैं, लोगों को आश्चर्य लगता है ये लगातार प्रार्थना करते हैं। एक बार की मेरी अनुभव, सियालकोट पंजाब, वहाँ के कन्वेंशन में मैं गया था। वहाँ के लोगों ने बताया यहाँ एक बहुत बड़ा वक्ता आया था, उसका नाम है प्रेइंग हाइड। ये इंग्लैंड का मिशनरी था, उसका पूरा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। उसका लेक्चर था तो लोगों ने उसे मिलने के लिए स्टेशन पे गए तो देखा स्टेशन के एक कोने में वो घुटने टेक के प्रेयर कर रहा था। जब उसका लेक्चर शुरू हुआ लोगों को लगा बहुत बड़ा सरमन देगा, नहीं,
वो सिर्फ खड़ा हुआ और 2 शब्द बोला, हे परमेश्वर, तू अपने लोगों की परिस्थिति देख। ओ गॉड, लुक एट द कंडीशन ऑफ योर पीपल। इतने बोलते ही पवित्र आत्मा ने ऐसा काम किया, पूरे कन्वेंशन के अंदर लोग रोने लगे, खुद के कंडीशन को देखने लगे। मेरा कहना है, प्रार्थना बेदारी लाती है। प्रभु यीशु का प्रेयर बहुत बार, इसलिए चेलों ने बोला हमें प्रार्थना सिखा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। क्या सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जो प्रार्थना स्वर्ग में शुरू होती है वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। द प्रेयर दैट बिगिन फ्रॉम हेवन विल रीच टू हेवन। स्वर्ग तक पहुंचती है। आप परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो। कितनी बातें हैं, कितना उसने हमारे लिए किया है। कभी अपने धन्यवाद दिया? बिल्कुल। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा एक बच्चा पैदा हो जाता है, सबसे पहले नर्स देखती है कि वो रोता कि नहीं, सांस चलती कि नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसका सांस चलना चाहिए। सांस चलती है तो मतलब वो जिंदा है। ये ब्रेथ, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल में अब एडमिट होते हैं, डॉक्टर बोलता है ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन लगा। एक रात को ऑक्सीजन लगाने के लिए 1000 रुपये ले लेता है। परमेश्वर ने जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से आज तक आपको मुफ्त का ऑक्सीजन दे रहा है। मुफ्त का ऑक्सीजन। लगातार आप सो रहे, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। उठ रहे, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। सिलेंडर का पैसा भरने की जरूरत, आपको मुफ्त में पानी दिया है, मुफ्त में ऑक्सीजन दिया है, मुफ्त में जीवन दिया है। जिस घड़ी आपका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, आपकी दुनिया की यात्रा खत्म हो जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर, हे मेरे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम पवित्र माना जाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना का पावर सिखाया है। आप ये पावर को आप जानिए। ईश्वर से आप अपना, कई बार अपन घबरा जाते, डर जाते, अरे क्या हो जाएगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा। सब गलत बात है। रोमियो को 8वां अध्याय लिखा, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों सब चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न कर उनके लिए जो उसके द्वारा बुलाए गए। परमेश्वर से आप प्रेम रखते हो, वो आपको भलाई, सब चीजें आपके लिए भलाई, परमेश्वर आपको संभालेगा। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास आइए। आपकी कमजोरी में आइए, प्रार्थना में आपकी जरूरत को स्पष्ट रूप से बताइए। खटखटाओ, एक बार खटखटाए तो नहीं, जब तक वो खोला नहीं जाएगा तब तक खटखटाओ। जब तक परमेश्वर उत्तर नहीं देता है तब तक प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। कभी ना कभी आपको उत्तर मिलेगा। आप फोन करते हैं, टेलीफोन में आता है, यह तुम्हारे रेंज के बाहर है, और किसी से फोन पे बात कर रहा है, उसका फोन बंद है। नहीं, परमेश्वर कभी भी तुम्हारे रेंज के बाहर नहीं, तुम परमेश्वर के रेंज के बाहर है। इसलिए परमेश्वर के रेंज के अंदर आ जाओ। वो बिजी नहीं है, आप बिजी हैं, आप व्यस्त हैं। आप उसके बाद आइए,
वो हर एक को उत्तर देगा, आपको उत्तर देगा। फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके पास आओ, प्रार्थना पूर्वक आओ, नम्रता से आओ, अपनी गरज को स्पष्ट रूप से बोलो, लजाने का नहीं। 3 रोटी मांगता है तो 3 रोटी मांगना है तो मांगो। आप अपनी जरूरत को उसके पास रखो, देखो वो आपको उत्तर कैसा देता कि नहीं। फिर एक बार मैं आपसे विनती करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के स्कूल में आप दाखिल हो जाओ। Join yourself in the school of prayer of the Lord Jesus Christ. आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, प्रार्थना सांस के समान है। जिस घड़ी सांस बंद हो जाती आदमी मर जाता है। जिस घड़ी इंसान प्रार्थना करना बंद कर देता है उसकी आत्मिक जीवन भी खत्म हो जाती है। हमें प्रार्थना करना सीखा, नम्रता से हम प्रार्थना करें, नम्र दीन होकर प्रार्थना करें, धन्यवाद देके प्रार्थना करें। और याद रखें, आपके अलावा कोई भी हमारी गरज को पूरा कर नहीं सकता। There is no one else who can fulfill our requirement. Lord, be merciful to us. प्रभु आप हम पर जाए, मसीह यीशु के नाम से। अब परमेश्वर का प्रेम जो सारे समझ से परे, आपके हृदय विचार भावना की रक्षा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आज तेरे हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।